is going globally. A little bit about which was what was talked a little while ago. You talked about AI. So yes, definitely AI technology has to be embraced. But AI as a word, I would say, is very grossly misused at this stage. AI is at a very nascent stage in India and also globally. There are many more levels of AI which has to come. What is a pure software development is today being termed as AI, and which is what we should be wary of, completely wary of. And I think in higher education that you are talking of, the Indian with the Foreign Universities Act having come up in the new education policy, more and more global universities, the Harvards and the MITs of this world, are going to set up shop in India. It may not be immediately in a year or two, but definitely you'll see that happening in the next 5 years. There'll be more exchange of faculty members, more exchange of latest technological developments, latest research, faculty members, students, and our higher education in India is slated to be amongst the best globally. थोड़ी देर पहले अभी आपने स्टार्टअप्स की भी बात की. मेरा इसमें कुछ कहना ये है कि there is startups in India has seen an up and down thing. 2 years ago, we had a whole lot of unicorns suddenly blooming up in the country. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनमें से कई कई यूनिकॉर्न्स बंद होने के कगार पे हैं. कारण क्या है इसका? Ultimately, the venture funds also have to be sort of helping them into seeing that they sustain. If they do not do that, then definitely startup culture in India is not going to prevail. Another thing that I find is which nobody is actually paying much attention to. There is a big paucity of we had somebody here from the venture funding also. There is a big paucity of the quantum of venture funding available as compared to the projects which are coming in. Many good projects are therefore getting sort of lied down on the wayside. They are not getting the kind of funding that they are that is actually required. And I started my thing. आपने उस चीज को कहा नहीं. What is most important going forward is कि हमारी per capita income बढ़नी चाहिए. जब तक वो नहीं होगा तब तक inclusive growth, inclusive economy हमारी बनेगी नहीं. और lastly एक बात और कही गई थी. I 100% agree that our education, we should align our education to the corporate requirements. हमारी education अभी काफी कुछ है, whether higher education or graduate education, it is not so much aligned to what is the need of the corporate. उसकी aligning जरूरी है. और मैं चूंकि higher education में हूँ, I am dealing in post graduate education. I find a big challenge. ये जो हमारे यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन का जो कल्चर है, बीए वगैरह इस तरह के जो कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स इस पीरियड में सीख जाते हैं कि how to not attend classes, how to just prepare during 1 month of the examination and pass and get a degree. हमें डिग्री नहीं है, हमें कंटिन्यूअस एजुकेशन मोड चाहिए ताकि हम आने वाले जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना पदार्पण करें उस समय हम उसके लिए अच्छी तरह से तैयार हों. ये 3-4 बातें मुझे कहनी थी. That's all. Thank you. जी, थैंक यू सर, थैंक यू. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड निखिल सर, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि जॉब क्रिएशन नहीं है और बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है आयुर्वेदा, जिसने रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन की है और काफी ज्यादा बूम भी सेक्टर में देखा गया है और इकोनॉमिकली भी इसने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है हमारी कंट्री को. और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए सर? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज बहुत ही क्रिस्प मैनर में बताइएगा, बिकॉज टाइम का थोड़ा सा हमारे पास कंस्ट्रक्शन. जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आयुर्वेद का जो बूम है इस करंट गवर्नमेंट के टाइम में या करंट जो सिनेरियो है कोविड के बाद में, वो एक आयुर्वेद को अच्छा बूम मिला है, जिससे जॉब क्रिएशंस भी आयुर्वेदा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हुए हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन को पहचान भी अच्छी मिली है.
दो पॉइंट्स मैं रखूंगा जो हमारी आने वाली गवर्नमेंट से हम एक एज एन आयुर्वेदा इंडस्ट्री हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट है जीएसटी रेट कट। अभी आज भी ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें जीएसटी 12% तक चले जाता है। तो हम लोग जो नई गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो या तो 5% में आ जाए या फिर टैक्स फ्री में आ जाए। और सेकेंडली हम लोग और एक उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो है एक्सपोर्ट्स को ईजी करना। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो इंडिया का एक पावर हब है, जो इंडिया की जिससे पहचान है, अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स और इजी होंगे आयुर्वेदा को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसमें जॉब क्रिएशंस और बेटर होंगे। जो लोकली भी जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों की मार्केट में डिमांड अच्छी होगी और इन टर्न ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगा। राइट, ठीक है। Moving forward, Abhishek sir, I would like to ask you, how might the change in government impact real estate rates? रियल एस्टेट रेट्स देखिए, मैंने अभी लास्ट आपका जब वो जो पूछ रहे थे आप, उसमें रियल एस्टेट रेट्स तो अभी डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज दैट हैज कम अप। सो सब कुछ इस समय तो एकदम अपवर्ड डायरेक्शन है और सबको पता ही होगा रियल एस्टेट कैसा चल रहा है अभी। बट यस, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट जो ये चेंज होकर आनी है, इसमें अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रख लें एज अ बायर पर्सपेक्टिव, आई वुड से, सो माय 2 पॉइंट सबमिशन वुड बी देयर। वन इज दी जीएसटी फैक्टर, बिकॉज अभी जैसे अभी निखिल साहब भी कर रहे थे, हमारे एक और पैनलिस्ट ने भी मेंशन किया था जीएसटी फैक्टर पे। सो ये 12% का इम्पैक्ट बहुत आता है। अभी तो हम आयुर्वेद या उस पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज आर लाइक, मैं बोल रहा हूँ आपको, करोड़ में जा रही हैं। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इट इज 12%, रेजिडेंशियल पे इट इज 5%, सो विच इज barely this thing, but कमर्शियल पे इम्पैक्ट मेजर है। सो जीएसटी फैक्टर पे अगर कुछ कंट्रोल आ जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट सारी चीजें बढ़ी हैं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट इजी, कि कहना आसान होता है कि चीजें कैसे कंट्रोल हो। बट यस, एज अ मैं बात कर रहा हूँ एज अ लेमैन, जो मीडियोकर लोग हैं जो अफोर्डेबल बाइंग करते हैं, उनके लिए 1-1 लाख रुपए का भी टॉपअप होना इम्पैक्ट करता है घर खरीदने में। सो ये जो फैक्टर्स हैं, तो जहाँ पे ये टैक्सेशंस हैं, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं, जिससे अगर कंट्रोल हो जाए तो बिल्डर्स भी अपने प्राइस को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पाएंगे। क्योंकि जब पीछे से मेरे को चीज ही महंगी मिल रही है, तो मैं अपनी एक कॉस्ट को लगाऊंगा, फिर प्रॉफिट लगाऊंगा, और मैंने लैंड कॉस्ट में लगाया है, तो ऑफ कोर्स रेट गोज अप, एंड ये हुआ है। पॉलिसीज इज वन फैक्टर विच इज अ पॉजिटिव साइड, बट यस, कंट्रोलिंग दीज फैक्टर्स, जिससे कि एक आम जनता जो घर खरीद रही है, अभी तो मैंने आपसे हाई एंड टिकट की बात करी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। अगोड़ा पे पाइए बेस्ट होटल्स एंड कमाल के प्राइसेस। तुम में एस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों। अगोड़ा स्ट्रीमलाइन बनाया जा सके, ऐसी क्या क्या चीजें चाहिए हमें सरकार से? तो कंचन जी, एक जैसे मैं पहले मेंशन कर रहा था, फोकस ऑन स्किलिंग एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के लिए क्या कर सकते हैं, दिस विल नॉट ओनली बी लिमिटेड टू एडटेक सेक्टर बट इन जनरल, बट एडटेक सेक्टर बीइंग यहाँ पर कि the liquidity is a major crunch. Some of the things that can really help the startups is, again, goes back to for any startup, liquidity and cash flow is one of the biggest constraints in multiple ways. One is, ये काफी हद तक उसको रोकता है स्टार्टअप कंपनी को, वो कितना ग्रो कर सकती है, कितनी नई ऑफरिंग्स ला सकती है, कौन सी नई सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है अपने क्लाइंट्स के, एंड कितना इनोवेशन कर सकती है, रिसर्च कितना कर सकती है। लिक्विडिटी हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगर आप देखेंगे स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न लिक्विडिटी और कैश फ्लो ही होता है। आई एम श्योर एवरीवन इन दिस पैनल। So two very important things that I can really point is, गवर्नमेंट ने ऑल्दो कुछ इसमें सपोर्ट किया है in terms of MSME, which was again set up I think in 2007, 2005 or 2007. 2005 or 2007, जहां पर की पेमेंट टर्म्स वगैरह को लेके किया गया, बट अगेन दैट पेमेंट टर्म इज kind of 45 days or 60 days,
जहाँ पर लेट्स से हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, देन द पेमेंट कम्स टू अस इन 60 days or something like that. Now, if there are some regulatory or statutory norms set up by government where the payment terms are reduced to, let's say, 15 or 20 days for startup, the companies that are actually declared as startup, I think that would be huge, humongous help for any startup, whether it's in EdTech or outside of EdTech. The second is from government itself, where there is something called as TDS, tax deduction at source. Now our clients will do a tax deduction which is around 10%. Now think about it. साल का let's say turnover है 50 crore का, उसमें 10% client ने रख लिया, which is around 5 crore. For a startup, usually the net profit or EBITDA, what we call, will be 5%, 7%, 8%, 10%, not even 10%. अब अगर 10% ही आपका क्लाइंट के पास रह जाएगा, थिंक अबाउट हाउ अ स्टार्टअप विल रन. आपका प्रॉफिट आपके क्लाइंट के पास रहेगा. सो where the TDS rates are also lowered, again there is some support for the government, but a much bigger support is required in terms of TDS, in terms of payment terms, and also probably in terms of GST as well, which my co-panelists have pointed out. There is some support from government, but I think what is the need of the hour is a special body that is formed with a clear focus कि हम स्टार्टअप्स को कैसे एनकरेज कर सकते हैं इन 3 एरियाज में, पेमेंट टर्म्स, टीडीएस एंड जीएसटी, doing a proper thorough analysis of that and coming up with concrete executable steps to help startups in these areas. I think that will make such a huge difference in really pushing startups to really execute very well and efficiently. राइट, ठीक है. तो ये जानकारी भी ले ली है और इसी में मैं ऐड ऑन करवाना चाहूंगी अब्बास जी से भी. सर, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, और क्या चैलेंजेस हैं जिनके लिए ऐसे पॉइंटर्स, ऐसे रिफॉर्म जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी और सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज इस टाइप पे गवर्नमेंट को करने चाहिए अपने नई पॉलिसी में? तो आई थिंक ओवरऑल अगर गवर्नमेंट अगर बिजनेस को थोड़ा इजी कर देना, आई थिंक बहुत बिजनेसेस को फायदा हो सकता है. बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो जीएसटी पेमेंट रहेगा, या तो इंपोर्ट का डिटेल्स रहेगा, या तो एक्सपोर्ट का कस्टम डिटेल्स प्रोसेस रहेगा. ये सब काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं. और जब हम फॉर एग्जांपल काम करते विद सम इंटरनेशनल कंट्री और समथिंग, तो उधर अगर मटेरियल भेजना हो, टाइमलाइन जो मैच करना हो, कभी कभी फॉर इट कैन गेट स्टक. और वो जो प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो क्लियर नहीं होता है, जो थोड़ा मतलब अप टू इंटरप्रिटेशन होता है कस्टम ऑफिसर के ऊपर और एनी काइंड ऑफ ऑफिसर के ऊपर, वो कभी कभी आके बिजनेसेस को बहुत डिफिकल्टी से करना पड़ता है. बिकॉज अभी मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स. जैसे कि हमारे टॉयज के ऊपर एमआरपीज रहते हैं, डेट्स रहते हैं, बीआईएस का इंफॉर्मेशन रहता है. ये जो रूल्स है ना, ये आप सब टॉय मैन्युफैक्चरर्स को अगर पूछोगे या तो किसी को भी पूछोगे तो आपको दिखेगा कि एवरीबडी इज कंफ्यूज कि एग्जैक्टली करना क्या है. क्योंकि कभी भी कोई भी एमआरटीपी का ऑफिशियल जाके कोई प्रोडक्ट मार्केट में से ले सकता है, एंड दे कैन सी दैट एंड दे कैन से कि इधर वायोलेशन है. लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा कि सबके बीच में कि व्हाट इज अ वायोलेशन, व्हाट इज नॉट अ वायोलेशन, दिस इज अलाउड, दिस नॉट अलाउड, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अगर वो क्लैरिटी से होता है ना, तो फिर आई थिंक वो एम्बिग्विटी बिजनेस में से हट जाता है. फिर आप फोकस कर सकते हो प्रोडक्ट के अंदर. काफी टाइम हमारा जाता है इन डीलिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, राइट. तो वो अगर गवर्नमेंट थोड़ा इजी कर दे बिजनेसेस के लिए, और आई थिंक ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, ये काफी बिजनेसेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहे, अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल अभी सर ने बोला था अबाउट क्रेडिट पीरियड और लिक्विडिटी, एकदम परफेक्ट बात बोली थी, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन बिजनेसेस टुडे. तो अभी गवर्नमेंट ने ये 15 डेज या 45 डेज का लिमिटेशन रखा भी है फॉर कंपनीज दैट आर कमिटेड एज स्टार्टअप. तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि अभी मैं जिससे भी बात करता हूँ उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि गवर्नमेंट एक्चुअली ये पॉलिसी के थ्रू आगे जाएगा कि नहीं. किसी को ज्यादा डर नहीं है दैट वी शुड मेंटेन वंस इन एक ईयर एंड के टाइम पे सब लोग ने थोड़ा मेंटेन किया था, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस था कि अभी गवर्नमेंट मेजर करने वाला है, बाद में दे विल नॉट बी ट्रैकिंग. तो ये सब अगर क्लैरिटी से हो, ये सब अच्छे इनिशिएटिव्स है, लेकिन अगर क्लैरिटी से हो, इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर हो, सब ऑफिसर का ओपिनियंस
ओपिनियन से मैटर नहीं होना चाहिए, जो लिखा हुआ है उससे मैटर होना चाहिए। वो स्पेसिफिक काफी टाइम डालना पड़ेगा टू मेक बिजनेस इजी। आई थिंक अगर वो गवर्नमेंट कर देना, काफी सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा एंग्जाइटी मेरा रात को रहता है, नॉट दैट मेरा बिजनेस में कल कस्टमर रहेगा या नहीं, लेकिन कल कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम में मैं ना आ जाऊँ। सो लॉट ऑफ माय टाइम गोज इनटू मेकिंग श्योर कि मेरा कंप्लायंस 100% हो, यू नो। और वो ईज ऑफ डूइंग बेसिकली हमें थोड़ा सा करना होगा, और थोड़ी सी पॉलिसीज को थोड़ा सा लाइट करना होगा, ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो सके और थोड़ा ये बड़े पैमाने तक पहुंच सके, जब ये चीजें और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए। काफी सारी हमने जानकारी ले ली है और काफी सारे एक्सपर्ट से भी हमने बात कर ली है। अपने अपने सेक्टर में उनकी वो है एक एक्सपर्टीज है। और साथ ही साथ इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, सारी की सारी जो हमने बात करी है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो ग्राउंड रियलिटी से आ रही है कि एक्चुअल में जो भी एक कोई स्टार्टअप चला रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, ग्राउंड रियलिटी में हमें किन चीजों का एक चीजें देखनी पड़ती है, कौन सी चीजें फेस करनी पड़ती है, और क्या हम सरकार से चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें उन पॉलिसीज में वो रिफॉर्म करके दे, ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारे लिए और पूरी जनता के लिए आसान हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हो जो कल के नतीजे हो और जो आज मुद्दे उठाए गए हैं, जो चीजें बोली गई हैं, अभी हमने आपस में बोली है, लेकिन ये आवाज काफी लोगों तक गई है, और आई होप ये आवाज सरकार तक भी गई होगी कि आने वाले टाइम पे हमें ये रिफॉर्म जरूर देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू। धन्यवाद सो कंटेक। मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो ये थे आज के खास पैनलिस्ट, जहाँ पे हमने बात करी बिजनेस के बारे में, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स के हमने महारथियों से बात करी कि इन ग्राउंड रियलिटी में उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ पॉलिसी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, सरकार से भी इस टाइम पे लोगों की क्या मांग है कि पॉलिसी में क्या रिफॉर्म्स आए, ताकि जो उनका बिजनेस है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, वो और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए।